Assalamu alaikum. I am Muzaffar Iqbal. Today we will discuss about interfaces. Interfaces can be defined in a number of ways. The most important definition of interface is that interface is a modified or advanced form of abstract class. In abstract class, you can define one or more than one instance variables, but in interfaces you cannot define instance variable. In abstract class, you can have one or more than one constructors, but in interface you cannot define any constructor. In abstract class, you could have a number of methods, but there will be at least one method where the body is unknown or the body cannot be defined, due to which the class becomes abstract. The most important feature of interface is that in interface all the methods are abstract. This point should be very clear that in interface you cannot define methods having body, and interfaces cannot be instantiated. So interface is like structure of a class. If in interface you have defined some abstract methods, then this interface can be implemented by a class, and in that class all the body of every method is then defined over there. Another aspect of interfaces is that through interfaces you can implement multiple inheritance. We know that in Java multiple inheritance is not allowed. In multiple inheritance, a class can have more than one parent classes. In Java, a class can have strictly one parent class but could have more than one child classes. But if you want to a class have more than one parents, then this thing can be implemented through interfaces. The important thing is that how an interface can be defined. So you can see in the example at the bottom of the slide that how interfaces can be defined. Interfaces are defined just like a class. While defining interfaces, you have to use the keyword interface. There should be a proper name of interface, and this interface is defined in a file, and the name of the file and the name of interface must be same. In interfaces, you can define one or more than one methods. And again, while defining method, the method must end with the semicolon. You cannot define body of methods in interfaces. All the methods in interfaces are abstract. This is important to note that by defining a method in interfaces, you don't need to write abstract keyword. In abstract classes, you are required to write abstract keyword to mention that this method is abstract. But in interface, you can see there is no abstract keyword being used over here. In fact, this is understood by Java that in interfaces all the methods are abstract. So there is no need to mention the keyword abstract over here. Another aspect is that in interface, every method is public. This is a good practice to write public over here. If you don't write public before the method name, then still this is not a syntax error. Every method defined in interface is automatically declared as public. So all the methods defined in interface must be public. We cannot define private, protected, or default methods in interfaces. One thing is very important that if a class implements an interface, then all the methods mentioned in the interface must be defined in the class which is going to implement the interface. For example, if in interface there are two methods A and B, then a class going to implement the interface must define both these methods. If the class cannot define one of the method mentioned in the interface, then the class becomes abstract, and in this case we cannot define object of this class. Now this class must be inherited by some other class, and then in the child of this class, the method which was not defined by the parent must be defined over there along with the body. Even if the child class is unable to define the body of the method which was mentioned in the interface of the parent class, then the child will also become abstract. And this will continue until all the methods mentioned in the interfaces are defined along with the body. So this is important that if a class is going to implement an interface, then all the methods mentioned in the interfaces must be defined by the class along with the body. If the class cannot define any of the method mentioned in the interface, then the class becomes abstract and we cannot define object of this class. Now let us see some examples to know that how interfaces can be defined and implemented by classes. तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि हाउ टू डिफाइन इंटरफेसेस. इंटरफेस हम जिस तरह एक क्लास को डिफाइन करते हैं उसी तरीके से कर रहे होते हैं. इंटरफेस शुड बी पब्लिक. अगर आपने पब्लिक नहीं लिखा तो कुछ वर्जन्स में आपको एरर मिल सकता है. तो इट इज़ अ practice to use public while defining interfaces. Then you have to use interface keyword. जिस तरह आप क्लास डिफाइन करते हैं public class, then
यहाँ पे हमारे पास पब्लिक इंटरफेस का कीवर्ड यूज होता है। एंड देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ इंटरफेस। जिस टाइम क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप क्लास में नेम को डिफाइन करने में जो कन्वेंशंस फॉलो कर रहे होते हैं वो सारी कन्वेंशंस यहाँ भी फॉलो होती हैं। लाइक क्लास का नेम स्टार्ट होता है विद कैपिटल लेटर, तो इंटरफेस पर भी हमारे पास जो नाम होगा ये भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। जो भी हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस का नेम होगा, जिस फाइल में इसको हम क्रिएट करेंगे उसका नाम भी वही होगा जो कि इंटरफेस का आपने नाम लिखा होगा। इस केस में क्लास का नेम, इंटरफेस का नेम और फाइल का नेम मस्ट बी सेम। इसके बाद ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आपने लिखे हुए इस इंटरफेस में। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि किसी भी इंटरफेस, किसी भी मेथड की आपने यहाँ पे कोई बॉडी मेंशन नहीं की। तो इंटरफेस हम नॉर्मली ऐसे ही डिफाइन कर रहे होते हैं। इसमें जस्ट आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का मेथड होना चाहिए। वो मेथड क्या करेगा, कैसे करेगा, ये इस इंटरफेस का काम नहीं है। जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो उस क्लास में फिर आप इन तमाम मेथड्स की बॉडी को मेंशन करेंगे कि इन मेथड्स में क्या क्या कोड आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड है। इंटरफेस जस्ट आपको एक क्लास का स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है उस क्लास में बाकी बेसिक जो मर्जी हो, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ये 4 मेथड्स तो होना भी लाजमी है। तो बड़ा सिंपल से होता है, आप इस तरीके से इंटरफेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने जैसे ये बताया कि ये वो मेथड्स हैं जो कि क्लास में होनी चाहिए। अब सपोज हमारे पास ये क्लास है कैलकुलेटर की, इसमें मैं उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो क्लास का नेम इज कैलकुलेटर एंड देन यू हैव टू मेंशन द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स एंड नाउ दिस इज इंटरफेस नेम। मतलब ये हुआ कि कैलकुलेटर की जो क्लास है ये मैथ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। अब जैसे उसने इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड लिखा, अब इस क्लास में एक कंपल्शन आ गई कि इस इंटरफेस में जितने मेथड्स वहाँ पे मेंशन हुए थे वो सारे मेथड्स इस क्लास को लाजमी डिफाइन करने पड़ेंगे। हमारे पास इस इंटरफेस में ये 4 मेथड्स हैं। इन चारों मेथड्स को इस क्लास में आपको डिफाइन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद बॉडी। अगर ये क्लास उन चारों में से कोई एक इंटरफेस को डिफाइन नहीं कर पाएगी तो फिर ये क्लास हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और आप यहाँ पे बाकायदा एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड पर लिखना पड़ेगा उस केस में अगर ये क्लास उनमें से किसी भी मेथड को इम्प्लीमेंट या डिफाइन नहीं कर पाती। अगर आपने इंटरफेस के सारे मेथड्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए देन दिस विल बी अ कंप्लीट क्लास। और इसके अगर चाहें तो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। ये इस क्लास का डिफॉल्ट का स्ट्रक्चर है। इसके दो हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं, ए एंड बी। ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहा था, मैंने उसको एम्प्टी छोड़ दिया। दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि दो पैरामीटर्स को रिसीव करेगा अगेन ए एंड बी को। यहाँ पे ए के नाम से जो पैरामीटर रिसीव करेगा दिस डॉट ए, मतलब कि इसी क्लास में मुझे यहाँ पे ए डिफाइन किया होगा, ये वाला ए इस क्लास का जो ए होगा उसको ये कॉपी करके दे देगा। और इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो बी के नाम से है, तो ये बी असाइन हो जाएगा इसी ही क्लास के बी एट्रीब्यूट को या बी इंस्टेंस वेरिएबल को। नो दिस इज मेथड नेम ऐड और ये वो मेथड है जो कि इंटरफेस में डिफाइन हुआ था। ये क्लास इंटरफेस करी इम्प्लीमेंट करी इस इंटरफेस को, तो इस इंटरफेस ने कहा था हमारे पास ये वाला मेथड डिफाइन होना चाहिए। अब इस क्लास में हमारे पास वो मेथड डिफाइन हो रहा है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेथड का नेम एंड रिटर्न टाइप एग्जैक्टली एंड अगर पैरामीटर्स भी हैं तो एग्जैक्टली वही होंगे जो कि इंटरफेस में आपने मेंशन किए थे। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं रिटर्न टाइप को, या अगर आप चेंज करेंगे उसके सिग्नेचर को, या सिंपल से वर्ड्स में अगर आप चेंज करेंगे उसके पैरामीटर्स को या पैरामीटर्स की टाइप को, तो ये आप इसका मतलब ये होगा कि जो इंटरफेस में जो मेथड कहा गया था कि ये वहाँ पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो ये भी और मेथड है। तो इस वजह से फिर हमारे पास ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ये कि आप इसको फिर आगे जस्ट इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इंटरफेस में जिस तरीके से कहा गया था कि इस तरह का मेथड होना चाहिए, ये पैरामीटर सपोज अगर हैं तो वो होने चाहिए, ये इसका रिटर्न टाइप होगा और स्पेसिफायर इसका पब्लिक होगा। हमारे पास यहाँ पे भी ये लाजमी पब्लिक होना चाहिए। हम यहाँ पे अगर पब्लिक के अलावा कुछ और करते हैं तो ये भी एरर है। ये जो इंटरफेस में जिस तरह कहा गया था कि रिटर्न टाइप होगी, ये एक्जैक्टली वही होगी, नाम ऑफ कोर्स हमारे पास वही होगा और पैरामीटर्स भी हमारे पास वही होंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो इंटरफेस के जो मेथड्स हैं ये आप यहाँ पे ओवरराइड कर रहे होते हैं। ना दिस वाज द मिसिंग पार्ट इन इंटरफेस। वहाँ पे हमने बॉडी डिफाइन नहीं की थी कि बॉडी में क्या होना चाहिए। ना दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस क्लास जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। इस क्लास में इंटरफेस के जितने भी मेथड्स थे आपने उन सब की बॉडी डिफाइन करनी है। इसी तरीके से इस इंटरफेस में हमारे पास ये बाकी भी कुछ मेथड्स लिखे गए थे और इंटरफेस ये चाहती है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो ये सारे मेथड्स वहाँ पे इसी तरीके से डिफाइन होने चाहिए और इस क्लास में उन तमाम मेथड्स को डिफाइन किया हुआ है। ये हमारे पास ऐड का मेथड है, इस सब हमारे पास है।
वहाँ पे इसकी बॉडी मिसिंग थी, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया कि सबटेंड इनफैक्ट a माइनस बी का जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा। एंड नाउ दिस इज मल्टीप्लाई, ये इसकी बॉडी है। और अगर आप चाहें तो इस क्लास में ये जो मेथड्स हैं इनके अलावा भी अगर आप किसी मेथड को यहाँ पे लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप इसके अलावा यहाँ पे जो मर्जी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में जो कुछ जो मेथड्स लिखे गए थे, जो वहाँ पे मेंशन हुए थे, वो सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ये उनको डिफाइन करना यहाँ पे लाजमी है। अगर इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो ये क्लास कंपाइल हो जाएगी, क्योंकि इसने जिस मेथड को इम्प्लीमेंट करना था उसके सारे मेथड्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए। जस्ट टू शो कि लेट्स से कि मैं इस मेथड का नाम वहाँ पे डिवाइड के नाम से था, लेट्स से मैं यहाँ पे डिवाइड 1 कर लेता हूँ, तो चेक करते हैं कि क्या अब भी ये हमारे पास जो क्लास है ये कंपाइल हो सकती है। यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इट मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि ये इंटरफेस के कम से कम एक मेथड को डिफाइन नहीं कर सका। अगर कोई भी क्लास इंटरफेस के सारे मेथड्स को डिफाइन नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास पर कंपाइल नहीं होगी। ये कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ये है कि आप फिर इस क्लास को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखें। जब ये क्लास हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसके लिए ये लाजमी नहीं है कि ये अपने इंटरफेस के सारे मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन करें। अगर वो कुछ मेथड्स को डिफाइन नहीं भी करना चाहती तो कर सकती है, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये आप सबको पता है कि जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है फिर इसको लाजमी किसी और क्लास में इनहेरिट करना होता है। फिर जिस क्लास में हम इसको इनहेरिट करेंगे तो जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड इंटरफेस का ये डिफाइन नहीं कर सका, तो फिर इस मेथड को हम डिफाइन करेंगे इस क्लास के चाइल्ड क्लास में। अगर सपोज इसका चाइल्ड भी डिफाइन नहीं कर सका ये मेथड, तो इसका चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर उसका मजीद एक और चाइल्ड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, और ये सिलसिला आपका फिर चलता जाएगा उस वक्त तक कि जब तक इंटरफेस के सारे मेथड्स डिफाइन हो नहीं जाते। ना इस क्लास को आगे जाकर यूज़ करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास क्लास है रनर की। और अगर मैं इस कोड को आपके लिए चलाऊँ तो ये आपको नजर आएगा कि इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास नजर आ रहा है। तो द बेसिक थिंग इज के आप मेथड को कैसे या इंटरफेस को कैसे आप डिफाइन कर रहे होते हैं, इस इंटरफेस को आप कैसे किसी क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, और कैसे आप इस क्लास को आगे जाके उसके ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। और हमने एक चीज़ डिस्कस की कि अगर ये क्लास इंप्लीमेंट करती है इस इंटरफेस को, तो इस इंटरफेस में हमारे पास जितने मेथड्स होंगे वो सारे के सारे इस क्लास में डिफाइन होना लाजमी है। अगर ये क्लास किसी एक भी मेथड को डिफाइन नहीं कर पाता तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इसके आप ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास ये जो कोड होगा ये फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसके ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट नहीं कर सकते।